এবারের বড় খবর, মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন উদ্ধব ঠাকরে। কিছুক্ষণ আগে ফেসবুক লাইভে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। আস্থা ভোটের আগে ইস্তফার কথা ঘোষণা উদ্ধব ঠাকরের। আস্থা ভোটে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ না দেওয়ার পরই ইস্তফা। ফেসবুক লাইভে ইস্তফার কথা ঘোষণা করলেন উদ্ধব ঠাকরে। মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়া নিয়ে কোনো আফসোস নেই বললেন উদ্ধব ঠাকরে। তিনি পাশাপাশি এমনটাও বলেন, যারা দূরে ছিল তারা কাছে, যারা কাছে ছিল তারাই এখন দূরে। এনসিপি কংগ্রেসের সহকর্মীদের ধন্যবাদ। রিকশা চালকদেরও মন্ত্রী সাংসদ করেছি, তারা ভুলেই গিয়েছে। যাদের বড় করেছে ক্ষমতা পাওয়ার পরে তারাই ভুলে গিয়েছে। যাদের সব দিয়েছি তারাই বিক্ষুব্ধ, যারা কিছু পায়নি তারাই এখন পাশে। আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়া নিয়ে কোনো আশ্বাস নেই, এমনটাই বললেন উদ্ধব ঠাকরে। কিছুক্ষণ আগে ফেসবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন উদ্ধব ঠাকরে। আস্থা ভোটের আগে ইস্তফার কথা ঘোষণা উদ্ধব ঠাকরে। আস্থা ভোটে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ না দেওয়ার পরেই ইস্তফা। মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেওয়া নিয়ে কোনো আফসোস নেই বললেন উদ্ধব ঠাকরে। কথা বলবো সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। উজ্জ্বল, মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন উদ্ধব ঠাকরে, পাশাপাশি তিনি এমনটাও বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়া নিয়ে কোনো আফসোস নেই তার। দেখো, আমরা যেটা জানতে পারছি, যখন তিনি ফেসবুক লাইভ করছেন তখন তারই একজন ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী তিনি কিন্তু রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর এই যে পদত্যাগের চিঠি তার ফেসবুক লাইভ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেবেন, এমনটাই কিন্তু পরিকল্পনা ছিল। এবং প্রথম থেকেই যেটা জানা যাচ্ছিল যে উদ্ধব ঠাকরে তিনি কিন্তু একেবারে নির্দিষ্টভাবে তিনি স্থির করে রেখেছিলেন যে যে মুহূর্তে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে, আস্থা ভোটের সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে, সেই মুহূর্তে তিনি কিন্তু পদত্যাগ করবেন। কারণ বারবার তিনি এই পদত্যাগের পথে হাঁটতে চেয়েছেন। মূলত এনসিপি এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাকে আটকেছেন, তাকে বাধা দিয়েছেন, বলেছেন আরও একটু সময় নেওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে তিনি ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছেন, তখন কিন্তু তার কাছে কার্যত কালকে ওখানে ফ্লোর টেস্ট করা থেকে তার আগে পদত্যাগ করা তিনি মনে করেছেন এটা অনেক বেশি সম্মানের। আমরা দেখলাম আজকে ফেসবুক লাইভে তিনি যে কথা বললেন, মূলত আক্রমণ করলেন সিন্ধে শিবিরকে। কারণ এক সময় একনাথ সিন্ধে তিনি অটো চালক ছিলেন, সেখান থেকে মন্ত্রী, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখানে তাকে মন্ত্রী করা, এই যে বিশাল পরিবর্তন তার হাত ধরে হয়েছে, কার্যত সেই ধরনের কিছু আবেগের কথা তিনি কিন্তু আজকে তুলে ধরলেন। একই সঙ্গে শিবসেনার যারা সমর্থক রয়েছেন, গোটা রাজ্য জুড়ে যে শিবসেনার সমর্থক, তাদের কাছে বার্তা দিলেন যে আগামী দিনে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে তারা থাকবেন, তারাই হবে আসল শিবসেনা, তাদের হাতেই থাকবে শিবসেনার পতাকা। যারা আসল শিবসেনা বলে আসামে দাঁড়িয়ে দাবি করছেন, তাদের কাছে কিন্তু তারা কিন্তু শিবসেনার কেউ না। কারণ বিপদের সময় তারাই প্রথম শিবসেনাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু শিবসেনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার না, আগামীকাল যা হতে চলেছে তা কিন্তু শিবসেনার বদলে এখানে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল, তখন কিন্তু সেটা হয়নি। 2.5 বছর পর বিজেপির যে স্বপ্ন মহারাষ্ট্রে তাদের সরকার গঠন করা, সেই স্বপ্ন কার্যত পূরণ হতে চলেছে এবং কার্যত বিনা বাধায়। आपण छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला निधी देऊन ते जे काही काम आहे ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून एक सुरुवात केली। हा एक योगायोग होता। नंतर जे इतकी वर्ष आम्ही बोलत होतो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त त्या माझ्या बळीराजाला कर्जमुक्त केलं। आता सुद्धा पीक विमा योजनेची जे बीड पॅटर्न आहे ते सुद्धा आपण करून घेतले। या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतोय की हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया। या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतोय की साधारण अभी भी हम पीक बीमा योजना अमल कर रहे हैं। आपण विसरणारे तर तसे नाही का, थोड्याशा गोष्टी बाजूला। आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, मला विशेष समाधान आहे। आज भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, आयुष्य सार्थकी लागलं तसं एक, और मुझे इस बात का समाधान है ती म्हणजे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी जिंदगी सार्थक हुई, ऐसी एक मेरी भावना है। शहराला ठेवलं, औरंगाबादला संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर जिल्ह्याला संभाजीनगर औरंगाबाद शिवसेना प्रमुख ने जो नाम शहर को दिया, औरंगाबाद को संभाजीनगर दिया, वो हमने आज दे दिया है। और इसी तरह से उस्मानाबाद को धाराशिव नाम दिया है।
मुख्यमंत्री जे और उसी तरह से जहां से मैं छोटे से बड़ा हुआ और अब मैं मुख्यमंत्री हूं, काम करतात त्यांना बांद्र्यामध्ये वे सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको बांद्रा की बस्ती जो है वहां उनके हक का घर मिले, इसके लिए भी हमने मंजूरी दे दी है। चांगली चालू असते ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं। अशी कोणाची दृष्ट लागली की आपण जाणतात लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको नजर लग जाती है। शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील आज खास करके शरद पवार साहब और सोनिया जी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी, एका गोष्टीचा इनके सभी सहकर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता एका हूं। गोष्टीचं झालं, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या नामांतर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, खुशी की बात थी। मी आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते, बाकी सगळे मंत्री। आज मंत्रिमंडल की बैठक में मैं आदित्य, सुभाष देसाई ऐसे और 4 मंत्रिमंडल के सदस्य थे। राष्ट्रवादी काँग्रेस एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस, म्हणून मी त्यांना सुद्धा एक शब्द से उन्होंने इन फैसलों का विरोध नहीं किया और तुरंत इनको मंजूरी दे दी, और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले, पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले। जिनको अब तक करना था आपल्याशी वो बोलतोय, अब तक दूर रहे, हे मनापासून बोलतोय, और जिनको दूर रहना था वो साथ में रहे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं मन से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। वर्धापन दिन झाला, लहानपणापासून मी शिवसेना काय आहे हे नुसतं शिवसेना को 56 साल हो गए। 21 जून को वर्धापन दिन था, स्थापना दिवस था। कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातभट्टीवाले सुद्धा सादे लोग हैं, त्यांना शिवसेना साधारण लोग हैं, चांगल्या मार्गावरती आणलं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, महापौर बनवलं, ऐसे लोगों को आमदार बनवलं, शिवसेना प्रमुख ने खासदार अच्छे बनवलं, रास्ते पर लाया, नगर सेवक बनाया, मेयर बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं ये सब लोग बड़े हो गए, विसरायला, और बड़े होने के बाद जिन्होंने अपने को बड़ा किया मोठं उनको केलं, भूल गए। ज्यांना सत्ता आपल्याकडे आल्यानंतर जिनको अब तक बड़ा जे किया, शक्य होतं ते सगळं दिलं, आज सुद्धा ज्यांना जे जे देता येईल ते सगळं दिलं, ती लोक सत्ता में आने के बाद जो कुछ भी दिया जा सकता है वो सब कुछ दिया। गेले 4-5 दिवस वैसे लोग मी मातोश्रीला नाराज हैं। आल्यानंतर सातत्याने और बीते 4-5 दिन से, लोक येत आहेत, महिला येत मतलब मैं मातोश्री पर आया तब से लगातार मातोश्री पर लगातार लोग आ रहे हैं, महिला आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, साधारण लोग आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ में हैं, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। कमाल है, जिनको दिया है वे लोग नाराज हैं, और जिनको नहीं दिया वो यहाँ आ रहे हैं। इसको बोलते हैं मानवता, इसको कहते हैं शिवसेना, इसको कहते हैं शिवसैनिक, और यही जो एक नाता है, अनेक आव्हानं आली, ती आव्हानं या और इसी नाते की वजह से शिवसेना अब तक मजबूत खड़ी रही है और कई चुनौतियां आई हैं, और शिवसेना ऐसी चुनौतियों को मात देते आई है। म्हटल्यानंतर न्यायदेवतेचा निकाल हा मान्य असायलाच पाहिजे। आज भी न्याय देवता ने मांडलेली आहे, फैसला सुनाया है, सुद्धा उद्या न्याय देवता किया है तो उनको न्याय देवता ये में देनी चाहिए। हमने हा एक भाग, अपना पक्ष रख दिया है। हा दुसरा भाग, उन्होंने कहा कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कहा है, एक भाग है कोरोना टेस्ट और दूसरा भाग है कोरोना टेस्ट। तो गवर्नर जी ने जो हमें कहा है, वो आदेश जो दिया है, राज्यपाल महोदय उसका पालन करने का निर्णय ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। राज्यपाल महोदय को भी मुझे धन्यवाद देना है कि आपने लोकतंत्र का मान रखा है, और किसी ने आपको पत्र दिया और उन्होंने 24 घंटे के अंदर हमें फ्लोर टेस्ट करने को कहा। और नम्रता से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र का पालन होना ही चाहिए, वो हम भी करेंगे। लेकिन 1.5-2 साल विधान परिषद के 12 सदस्यों की जो लिस्ट आपके पास अटकी हुई थी, वो अगर आप अभी भी मंजूर कर दें तो आपके प्रति जो आदर है वो बरकरार रहेगा। सांगत होते ते सोबत राहिले। आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है मला म्हणाले कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दगाबाजी करेंगे, वो साथ में रहेंगे। आज मंत्रिमंडल की बैठक में अशोक चौहान ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, पण त्यांना म्हणे तुम्ही या, असं वेड्यासारखं वागू।
अगर कांग्रेस या राष्ट्रवादी की वजह से समस्या हो रही है तो हम बाहर जाने को तैयार हैं। ठीक आहे, तुमच्या सगळ्यांची म्हणजे जे काही नाराज लोक आहेत, कल मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिया नेमके आहे तरी कोणावर? माझ्यावर कि ठीक है काँग्रेसवर कि जो नाराज लोग हैं, आज अगर तुम्हारी नाराजगी आखिर है किस पर, मेरे प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, राष्ट्रवादी के प्रति है? पण आपली जी काही नाराजी आहे, अगर आपको लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा हो, तो आपकी जो नाराजगी है वो सूरत या गुवाहाटी में जाकर बताने की बजाय अपने खुद के हक के घर में, वर्षा में या फिर मातोश्री में आकर बताते। की तुमच्या मैंने बोला होता, नेहमी मी आदर करत आलो, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, तुमच्या भावनांचा आदर करू इच्छितो, पण मैं आपकी भावनाओं का हमेशा आदर करते आया हूँ। समोर येऊन बोला। मैं आपकी भावना का आदर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि सामने आकर बोलिए ना। मला या भानगडीत पडायचं नाही, कारण एकदा मी तुम्हाला मैं तुमसे कुछ बोलूं, फिर तुम कुछ प्रेस में बोलो, मैं कुछ बोलूं, फिर तुम उसको प्रेस में बोलो, इन सब झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। किती करायच्या? आज सुद्धा मला मुंबईमध्ये उनके साथ में वाद क्या करते बैठूं मैं, वाद विवाद क्या मैं करते बैठूं, कितना करते बैठूं? मुंबईमध्ये आता बंदोबस्त वाढवत आहेत केंद्राच्या सूचनेवर। अनेक शिवसैनिकांना स्थानबद्ध मुंबई में अभी बाहेर बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है केंद्र के निर्देश पर। केंद्रीय राखीव दल कई शिवसैनिकों को कहा जा रहा है कि घर में ही रहो, बाहर मत निकलना, ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं। संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये ऐसे केंद्र की फोर्सें आ रही हैं, कल को कशासाठी? मिलिट्री आ रही है। मला खरंच लाज वाटते, ज्या ये सब किस लिए, क्यों? या सगळ्या मुझे शर्म आती है। विजयाचा गुलाल उधळला, जिन शिवसैनिकों ने गुलालाने बेहोशीने लाल झाले होते, इन त्यांच्या विधायकों के जीत का गुलाल उड़ाया, एवढी माणुसकी विसरली? उनके रक्त से क्या मुंबई के रास्ते आप लाल करने वाले हैं? कोणी शिवसैनिकांनी त्यांच्या आधीमध्ये येऊ नका, येऊ द्या। ये नाते तोड़ दिए। लोकशाहीचा पाळणा हलतोय, नवीन नवीन मैं कहूंगा कि सभी शिवसैनिकों को कि इनको कुछ मत कीजिए। त्यांची जी काही सगळी नाते मंडळी आहेत, पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल, अगर मिलिटरी लोकतंत्र जन्म ले रहा है और उसका झूला झुलाया जा रहा है, देशातलं काही सैनिक तो केंद्रीय बल, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और कुछ और फोर्स को लाना है, सगळे त्याचे तो फिर एकत्र पाहिजे। आने दो। लोकतंत्र का जन्म का जल्लोष होना चाहिए, उत्सव मनाया जाना चाहिए। की तुमच्यामध्ये मार्गामध्ये कोणी येणार नाही, तुम्ही शिवसैनिकों को रास्ते पर नहीं आना है। घ्या शपथ। और मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, तुम आओ और शपथ ले लो। कल फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा? मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? महाविकास आघाड़ी के पास, शिवसेना के पास कितने विधायक हैं? बीजेपी के पास कितने आए हैं? एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे। ये सब क्यों अपना दिमाग इन सब में क्यों इस्तेमाल करना? इनके लिए करना है क्या? काम करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है? किती संख्या? मला त्याच्यामध्ये रस नाही। मी यापूर्वीच दिमाग का इस्तेमाल होता है कि ये गिनने के लिए कि किसके पास कितना बहुमत है, कितने मत हैं। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। पण माझ्या विरोधात मेरे विरोध में माझा माणूस उभा राहिला, कौन है, कितना है, मुझे उसमें जरा भी रस नहीं है। ठीक आहे, तुमची इच्छा ही प्रमाण, कारण का तुमच्याकडे ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही आता ज्यांच्यासोबत जाणार तुम्हारी इच्छा ये प्रमाण है। ते सगळं एकत्र झालं तर कदाचित उद्या बहुमत सिद्ध करा। मला तो खेळच खेळायचा नाही, मला खेळच खेळायचा नाही। कारण क्या है कि तुम एक साथ जाओगे तो बहुमत सिद्ध करोगे। असं वाटतं की ज्यांना शिवसेनेने मुझे राजकीय जन्म दिला, प्रामाणिक तौर पर ऐसा लगता है, साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं, त्या शिवसेना जिन्होंने शिवसेना ने राजनीति में जन्म दिया, जिन्हें शिवसेना प्रमुख ने बड़ा किया, त्यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या। उन शिवसेना त्यांच्या पदरात पुण्य पडत प्रमुख असेल के तर यांच्यावरती बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाने का पुण्य अगर उन्हें मिल रहा है तो पुण्य उन्हें मिलने दो। ही अशी भोगावी लागत असेल, मतलब ये तर त्याच्यात त्यांचा काय सब पाप मेरा है और उद्या उस ते अभिमानाने पाप का फल ऐसा है उसको भोगना ही पड़ेगा। इथपर्यंत आणलं, पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला खाली उतरवला की नाही हे पुण्य घेऊन कल वो अभिमान के साथ, गर्व के साथ कहेंगे कि शिवसेना प्रमुख ने हमें यहाँ तक लाया, लेकिन हमने उनके बेटे को हटा दिया। ठीक आहे, अशा गोष्टी होत असतात, अशा गोष्टी ये पुण्य उनको मिलेगा। मला ठीक है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अजिबात नाही, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा मुझे नव्हती। मुख्यमंत्री तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही चांगलं छोड़ने, कुटुंब पद छोड़ने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। कुठेही आपापले जर होऊन जात नाही, आम्ही जे काय करतो ते साध्या साध्या शिवसैनिकांसाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। उगाच
हम जो कुछ भी करते हैं शिवसैनिक के लिए करते हैं, मराठी माणूस के लिए करते हैं, हिंदुत्व के लिए करते हैं. मी गेल्या बुधवारी आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान शासकीय निवासस्थान सोडलं माझ्या मातृभूमीमध्ये आलो, आपल्या मातृभूमीमध्ये आलो. मैंने आज मी आपल्या बीते गुरुवार को ही सबको बताकर वर्षा शासकीय निवास स्थान, सरकारी निवास स्थान छोड़ दिया था और मातोश्री अपने निवास स्थान पर आ गया और अब सबके सामने खूप प्रेम दिलं. और मुख्यमंत्री पद का मैं त्याग कर रहा हूं. ठीक आहे, मी काही आज तक आपने बहुत प्रेम दिया, आपने आशीर्वाद दिया. पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके साथ साथ मध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी कल बंदोबस्त में मी नाही. जो भी म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतो शिवसैनिक की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका. जब आएंगे आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल त्यांच्या इथ्या शिवसेनेला कल सत्तेवरून मैं शिवसैनिकों को कहूंगा कि बीच में ना आए, उनको उनका आनंद मनाने दे, आनंद का गुलाल उड़ाने दे, वाटू द्या. तो गोडवा त्यांना लग लागू. उनको पेड़ा खाने दीजिए मला तुमच्या और उनको जो लगता है लगने दो. आज सुद्धा मी मुझे आपके प्यार की मिठास चाहिए. तरी सांगतायत मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे. पण त्यांना सुद्धा मी सांगते की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि वारकरी कहते जे काही हैं होईल कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे चाहिए आणि हे चांगलं करण्यासाठी और जो होगा वो अच्छा होगा. सोबत आशीर्वाद पाहिजे, प्रेम और पाहिजे. अच्छा करने के लिए मला भरभरून प्रेम दिलं. हे जे मी तुम्हाला सांगत आलो ते जे तुम्ही ऐकत आलो, आज तक आपने मुझे भरपूर प्रेम दिया. ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली जो जो मैंने आपको बोला वो आपने सुना. कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही समजदार बीते काल में देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन महाराष्ट्र में दंगे हुए नहीं. मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले. होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा ऐकलं, त्यांनी सुद्धा आलं ऐकलं. मुस्लिम बंधुओं ने भी चांगलं बात चालू सुनी. असताना हे असं एनआरसी सीए के वक्त में मला विचारलं, दंगे हुए. असं सगळं घडतं. पण मी आलो होतो अनपेक्षितपणे, तर जातोय अनपेक्षितपणे. जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे. पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात मैं करणार आहे. आया पुन्हा भी माझ्या अनपेक्षित शिवसैनिकांना तरीके से भेटायला सुरुवात करणार और आहे. जाता भी अनपेक्षित पुन्हा तरीके से हूँ. नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण मैं फिर से एक बार शिवसैनिकों से त्यांना सोबत घेऊन मिलने की शुरुआत करने वाला हूँ शिवसेनेची वाटचाल. नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे. और फिर से शिवसेना आपलीच मैं आहे. उड़ान भरूंगा शिवसेना कधीही युवकों के साथ में और एक नई शिवसेना के साथ. नए का मतलब यह है कि शिवसेना वही है. ना शिवसेना हिरवून घेऊ शकत, शिवसेना कोई हमसे छीन नहीं सकती. ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरवून घेऊ शकत. बिल्कुल भी आपण नहीं. इथेच राहणार आहोत. आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, ना कोई शिवसेना छीन त्याचप्रमाणे सकता है, ना आपसे माझ्या ठाकरे कुटुंब को, विधान ठाकरे परिवार को कोई सदस्यत्वाचा सुद्धा छीन सकता. और जिस राजीनामा तरह से देतो मैं आहे. मुख्यमंत्री कारण पद से इस्तीफा दे रहा मी पुन्हा हूँ, येईन असं बोललोच उसी नाही. तरह से मैं विधान परिषद के सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये आता कहा मी नहीं आहे, कि मैं फिर तो से तुमचा आऊंगा. आहे, तुमच्या सोबत आहे. परत एकदा माझ्या अब सोबत मैं जो असलेल्या हूँ, सर्व आप- सहकाऱ्यांचं, आपका हूँ, आपके जे साथ हूँ. मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार, फिर एक सगळे बार सहकारी, आता सहकारी मेरे सुद्धा साथ जिकडे फळ दिसतात जो तिकडे साथ ते में फळ जो द्या. मंत्री जाऊ द्या. हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी के जो लोग हैं, जो सहकर्मी हैं, शासकीय यंत्रणेचं, मग ते सगळे सचिव, पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर, सगळ्यांचं मी और खास करके